dogmatic creed. It is under flux, ever changing, and trying to progress, to keep pace with the progress of thought. So there is so much flexibility. Those who are draped in clothes are welcome. Those who are without clothes are welcome. Akhadas, aghoris, men, women, every caste, every creed. So it is something like an ocean of faith, ocean of traditions. And everyone whosoever has some faith in their tradition, they are most welcome. There is no set structures within this religion. And that liberty of having a particular thought can be clearly witnessed in this Kumbh Mahaparv. You can see these Shahi Sawaris. You can see that color has its own chemistry, color has its own relevance, own understanding. We see the yellow colors, we see the saffron one, the red Dharm Dhwaja, and lot of people are holding, they are not essentially akhadas, but they are having their own religious groups. We were watching that time Radha Swami group. They have their Narayan Swami group. Lot of groups are there and they are upholding their Dharm Dhwaja with a particular color. When I see this yellow color, I reminded of the Phool Devi festival of Uttarakhand, which recently celebrated in the Chaitra Mas. The Phooli flower is bloomed during this time, and the high hills with buras and Phoolis look so beautiful, look so wonderful, that it is the gift of nature to the people who are highlanders. Now we can see that how petals are being showered on these devotees, and as already been informed that it was the commitment and announcement of the Chief Minister of Uttarakhand, Shri Tirath Singh Rawat ji, that this Kumbh Mela should be celebrated with grand and sublime manner, with certain dignity and with safety as well, because we are passing through a very difficult time of COVID-19. So these colors, you can see the yellow color, the fluorescent, the white and the saffron. These colors are the main colors of these devotees. They are looking like the ocean of faith, ocean of human beings. Some of them are reaching to Har Ki Paidi, some of them are coming back in a very disciplined manner. Everywhere there are arrangements of temporary bridges, permanent structures, and Haridwar has all absolutely been changed. Metamorphosis in the infrastructure of Haridwar city to celebrate the Kumbh Mahaparv. It is wonderful, it is fantastically arranged, and everyone is cooperating with the administration, with the Mela administration, day and night, 24/7. People are working from highest level to the people who are keeping this place neat and clean, to welcome all the akhadas, to welcome all the devotees coming from outside of this city. So everything is wonderfully arranged, and it's really fantastic that since morning we have been witnessing that how cheerful people are, how they are there walking barefoot without any mark of exhaustion on their faces. Rather, they are brimming with celestial light and bliss and activity and vigor, and try to get as much as punya by taking a holy dip in the river Ganga. As afternoon approaches, temperatures are soaring. We can see that the heat is rising, and many of the devotees are on the tarred roads. They are barefoot, but they are undeterred. They are unperturbed by the heat. They are unperturbed by the mass heading towards Mother Ganga
for the holy dip, people take courage. They take great courage in faith. And faith, as we know, can move mountains. This is the spirit that brings millions of people to the Kumbh Mela from across the country, to the Devabhoomi, to Uttarakhand, to the place where the Himalayas are. And Devabhoomi Uttarakhand embraces everyone, welcomes everyone with open arms. While I talk about Uttarakhand, let me also talk about the female energy and which Mother Ganga represents. This female energy is embraced wholeheartedly by the people of Uttarakhand because this is perhaps the only place where the people who live in the mountains establish a very strong relationship with their Devis and Devatas. This is the place where Nanda Devi is treated as a goddess, as someone that needs to be worshipped, but also as a daughter, also as a member of the family. And our yatras, our pilgrimages, they represent this respect for female energy. They represent this respect for Prakriti, which is enshrined in women power. So I'm referring to the festival of Nanda Devi or the Nanda Devi Rajjat, which is also much like the Kumbh Mela organized every 12 years, where the people treating Gaura or Nanda, the manifestation of Parvati as their own daughter, go in a procession all the way up to the higher reaches of the Himalayas in a very difficult pilgrimage, in a pilgrimage that spans over a month and a half and covers about 250 kilometers of very difficult terrain to send Nanda Devi to her husband Shiva's abode. This is Uttarakhand. This is the state in the Himalayas that is the beacon of belief, that is the beacon of spiritual energy and power, that has embraced the Kumbh Mela and has welcomed thousands upon thousands of devotees from different sects, from different branches of the Sanatan Dharma, and given them this opportunity to seek benediction, to seek grace on this auspicious occasion of the Somavati Amavasya, which has occurred this year, particularly during the Kumbh Mela. As one of my colleagues had earlier mentioned, that it is not essential for the Somavati Amavasya, the Amavasya of the Monday, to occur during the Kumbh period. But we are fortunate to have witnessed this day today that the Somavati Amavasya has occurred during the Kumbh times, and very soon a new year will begin, and we hope that a new era will also start where we will get rid of all our evils. We will get rid of especially the COVID virus that has afflicted humanity in an unprecedented way. Let us hope for a brighter future. Let us hope for a better day tomorrow. Today's celebration has been an enormous one and greatly successful. And listening to the insightful information and the knowledge delivered by some eminent personalities present here, like Dr. Buddhinath Mishraji, Professor Tripathi, Dr. Tiwari, Professor Surekha Dangwal, Dr. Lokesh Ohri, on the Kumbh Mahaparv, delineating with their rich diction the beauty of the myths and legends that encompass our faith, our belief in the divine presence of the omniscient, the omnipotent, and it had been quite enlightening. This congregation at the Holy Land speaks for the beauty of humanity, the bond of being
and belonging and belief on the divine, the Nirakar. And yes, as Professor Surekha Dangwal had just said, it is a delight to see the enthusiasm of the ascetics and the devotees alike, and how they are not at all mindful even about the scorching heat, measuring a temperature of 31 degree at present. The exuberance in each person taking dip in the holy Ganges reflects their faith in achieving salvation, achieving moksha from all the pains and sufferings, be it physical or of the mind. In Hindu religion, the holy river Ganga is personified as the goddess Ganga. It is believed that bathing in the holy Ganga can help wash all sins. People also believe that a mere touch of the river can help attain moksha, and so the ashes of the dead are immersed in the holy Ganga. This is the reason that it is popularly known as Mokshdaini. This story has been narrated so many times by my co-anchors, but when we feel that King Bhagirath of Ikshaku dynasty brought the river Ganga to earth from the heaven, it was a very grand purpose to bestow nirvana to his ancestors who were cursed by Kapil Muni. And after years of great tapasya, river Ganga descended on earth, and Lord Shiva accepted to channelize the furious flow of Ganga. Therefore, river Ganga flowed from Lord Shiva's hair and also known as Jata Shankari. I would like to mention that how Western literature writers talk about Ganga in a very different manner. I just reminded of the famous American-British writer T.S. Eliot, a Nobel laureate, and he mentioned Ganga in his famous poem, The Wasteland. When he talks about the unethical things about River Thames, and he says that everything which is bad and unethical take place on the banks of River Thames. He resets the tone and talk about river Ganga. He used the word Ganga and not Ganges. You just look at the Mansa Devi temple. Mansa Devi and Chandi Devi, the two protectors of this holy city of Kumbh Haridwar. They are at the top, and we have been discussing about why all the goddesses occupied the zenith in Uttarakhand. They are there like, everyone is safe in the lap of these two great goddesses. When T.S. Eliot was talking about mountains, and he says, I can see that some clouds are gathering around Himwant. He used the word Himwant, he used the word Ganga, and he says that the problems of everything is in the Western world, and the solution we have to look back to India. And he picked up some solution from Brihadaranyaka Upanishad for the wasteland. He mentioned that 3D should be followed strictly, and he narrated the event of Daksh Prajapati, and he says da da da, that is Datta Dayadhavam Damyate Shanti Shanti Shanti. These are the last lines, closing lines of the world famous poem The Wasteland. And he says we have to take instances and power from the river Ganga. We have to see, we have to look at Himwant, we have to look at the philosophy that to give, we have to give. Whatever we earn, some portions we have to give to the people who are in need of it.
So you can see lot of bhandaras are going on in this Kumbh Nagari. So whatever we earn, we have to give it to the people who are in need of it. To compassionate, we have to have some kind of elements of daya for our fellow creatures. And damyate is to control. So when we see that how tapasya can be taken place during 64,000 years long or 14 years Lord Ram was having Banvas, we can see these calculations of years and days show the control in our life, and it is depicted in our scriptures, in our Upanishads and in the Gita. That's the great thing. Everything is reflected here. The essence of our philosophy, the essence of our religion, everything philosophized here, spiritualized here. It's a grand event of humanity. भव्य और दिव्य कुंभ का दूसरा शाही स्नान प्रगति पर है और जैसे जैसे अखाड़ों का क्रम तय किया गया है उसी के अनुसार वो ब्रह्मकुंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना की चुनौती के बीच इतने बड़े महापर्व का आयोजन किसी भी प्रशासन के लिए आसान नहीं है। हरिद्वार कुंभ मेला प्रशासन के अनुसार इस पूरे मेला क्षेत्र में 350 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से करीब 100 कैमरे ऐसे हैं जिनमें स्पेशल सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही इस कैमरे को कोई व्यक्ति बिना मास्क के दिखता है, ये उसकी तस्वीर खींच लेता है। हरिद्वार कुंभ में ऐसे कैमरे पहली बार लगाए गए हैं। जैसे ही इस कैमरे को बिना मास्क का कोई व्यक्ति दिखता है, उसकी तस्वीर खींचकर ये मेला भवन में स्थित सर्विलांस कंट्रोल रूम में एक अलर्ट भेज देता है, जो उस व्यक्ति के नज़दीक मौजूद इन्फोर्समेंट टीम को उसकी हरकत की जानकारी देता है। वो टीम फौरन उसके पास पहुंचती है और उसे सबसे पहले मास्क देती है और नियमों के हिसाब से उसे दंडित भी किया जाता है। जो एक और अच्छी बात है कि पिछले कुछ समय से सीसीटीवी कैमरे बिजली से संचालित होते थे, लेकिन मेला प्रशासन ने इस बार बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगाए हैं जो सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। ऐसे में बिजली जाने के बाद भी सर्विलांस कंट्रोल रूम में हर पल की गतिविधि जो नियंत्रक हैं वो देखते रहते हैं और ऐसे में जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने में आसानी हो रही है। और कुछ कैमरे ऐसे भी हैं जो पैन हो सकते हैं, टिल्ट हो सकते हैं, जूम किए जा सकते हैं। तो व्यवस्था के नज़रिए से भी इस कुंभ में बहुत प्रगति हुई है। पूरे भारत में डिजिटल इंडिया अभियान चल रहा है और उसे ही डिजिटल अभियान के तहत हम देखें तो इस कुंभ को भी एक नया आयाम दिया गया है। और इस पूरे मेला प्रशासन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि चाहे वो साधु हों, संत हों, सन्यासी हों, महामंडलेश्वर हों या फिर देश और दुनिया से कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आए गृहस्थ जीवन से जुड़े लोग, उनको कोई असुविधा ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। हर कोई कुंभ का लंबे समय तक इंतज़ार करता है और वो जब यहाँ आए तो यहाँ से सुखद यादें लेकर जाएं। लोगों के मन में कोरोना का भय ज़रूर है, लेकिन उस भय के बीच भी जो वो आस्था के साथ आया है उसकी सुखद यादें लंबे समय तक उसके जहन में हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार और मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारी दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आनंद श्रीवास्तव जी ने आपको बताया कि मेले में जो आते हैं उन पर एक एक व्यक्ति पर नज़र रखी जाती है कि वो मास्क पहने हुए हैं कि नहीं और आवश्यक दूरी बनाए हुए हैं कि नहीं। ये कैमरे से लग रहा है आपको कि लोग बहुत सटे हुए हैं, लेकिन जब नज़दीक से आप देखेंगे तो बहुत दूर दूर हैं। बहुत दूर नहीं है क्योंकि ये देश बड़ा फैला हुआ नहीं है आबादी की दृष्टि से भी, इसलिए जो पैमाना है उसमें दिक्कत तो होगी ही। कल शाम को जब हम लोग आए थे और इसे पूरा मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया था, कई तरह की आशंकाएं थी मन में, कई तरह के
भावनाएं थी, क्या होगा, कैसे होगा। प्रशासन ने जो व्यवस्था की उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो कहीं कोई आसपास जैसे ऋषिकेश में जो आया हुआ है उसको यहाँ आने कोई बसें नहीं आती थी डायरेक्ट, तो ऋषिकेश से शटल बसों से लोगों को निःशुल्क यहाँ पर पहुँचाया जाता था। इस तरह से तमाम सुविधाएं की गई हैं। पानी की, स्वच्छता की जो है व्यवस्था वो की हुई है। आज सवेरे मैं 4 बजे से स्नानार्थियों का तांता देख रहा हूँ और सवेरे से ही ये अनाउंसमेंट भी हो रहा है, घोषणाएं भी हो रही हैं। जो बताया गया कि कैमरा ही बता देता है कि किसने मास्क नहीं पहना है, तो ये अजीब चीज़ है। अब आगे से आप जो आएंगे वो ध्यान रखें कि चालाकी नहीं चल पाएगी। आएँ लेकिन ज़रूर, क्योंकि ये कुंभ जो है आपके कारण है, भारतीय जनता का, भारतीय दर्शकों या स्नानार्थियों का पर्व है। ये जो साधु सन्यासियों का जो स्नान है वो तभी समलंकृत होता है, शोभित होता है, जब उसके साथ बड़ी संख्या में आप होते हैं। तो ये निश्चित रूप से हम तो उस दिन की कल्पना करते हैं जब द्वादश कुंभ जो है वह सार्थक हो, सभी स्थानों पर आयोजित हों, सभी राज्य सरकारें उसके लिए तैयार हों और उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में कुंभकोणम, पश्चिम में द्वारका और पूरब में पुरी। ये जो इतना बड़ा जो विराट फलक है, उस फलक पर जब कुंभ स्नान होगा तब हमारी जो संस्कृति है, जो कि वर्षों से क्षरण की ओर जा रही थी, उसको कुंभ ने संभाला है। कुंभ का मतलब ही है जो विचारक हैं हमारे यहाँ विचारक साधु हैं, साधु सन्यासी हैं। वो राजनेता नहीं है। राजनेता तो कार्य करने के लिए हैं। जैसे कि पहले राजा होते थे, राजा का जो कार्य था, ये गंगा देख रहे हैं आप, गंगा की छवि एक दी है, दर्शन कर लीजिए। और ये सब देखिए, किसी के चेहरे पर थकान आप नहीं पाएंगे। ये खास बात है कि दिन बीतता जा रहा है, लेकिन जो भी आ रहे हैं उनके, और ये जो आ रहे हैं वो दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद, अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के बाद आ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि तब भी उनके चेहरे पर कोई झुंझलाहट नहीं है, एक उत्साह है, एक उल्लास है कि वो कुंभ में स्नान में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। तो दूसरा शाही स्नान धीरे धीरे अब जो समापन की ओर जा रहा है। शाम तक ये चलेगा, रात में भी हो सकता है, लेकिन दूरदर्शन का जो है वह जो देश विदेश के दर्शक हैं उनके लिए 4 बजे तक का इंतज़ाम है। 4 बजे तक हम सजीव प्रसारण कर रहे हैं। जिन्होंने देखा है, जिन नहीं देख पाए, वो YouTube के माध्यम से उसको देख भी सकते हैं बाद में भी। ये ऐसी व्यवस्था, नई व्यवस्था की गई है। ये जो है चूँकि आप नहीं आ पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुंभ में भाग नहीं लिया। आपने अगर इसको देखा है दूरदर्शन के माध्यम से, तो आपने भी हिस्सा लिया है, प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, जो भी हो। समय सूर्यास्त की ओर बढ़ता जा रहा है और ये क्रम तो चलेगा ही, लेकिन हम लोग अब धीरे धीरे इसको समापन की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि जो शाही स्नान का जो क्रम है वो थोड़ा सा हो सकता है और आगे बढ़े, क्योंकि स्नान में थोड़ी देर हो जाती है, विलम्ब हो जाता है। हालांकि बहुत अनुशासित ढंग से पूरा दिन हम लोग एक एक दृश्य को दिखाते रहे हैं, एक एक दृश्य पर हमारी नज़र रही है। बीच बीच में हमने जो आए हुए साधु हैं, सन्यासी हैं, स्नानार्थी हैं, उन सब का भी विचार लिया ताकि आप उससे समृद्ध हो सकें, जान सकें कि उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या इस स्नान को सफल बनाने में उनका क्या योगदान है, उसको भी आप देखें।
इसके बाद हम लोग फिर जुटेंगे। आज के बाद कल के लिए मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, जो कि शक्ति की, ये जो शक्ति पीठ है, जो आपने देखा कि मनसा देवी एक तरफ और दूसरी तरफ जो है चंडी देवी, और तो ये दोनों देवियों के बीच में जो शिव है, जो शिव स्वरूप है, इसको इनकी आराधना का कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, जो 9 दिन तक चलेंगे। निश्चित रूप से बहुत लोग इसलिए भी नहीं आ पाए कि उनको नवरात्रि में बाधा आ रही थी, तो नवरात्र की शुभकामना मैं देता हूँ। और परसों फिर हम लोग 9 बजे जुटेंगे। हालांकि परसों जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्यों मेष संक्रांति का दिन है, जहाँ से संवत्सर प्रारंभ होता है। सौर पंचांग यानी सौर गणना जो है सबसे ज़्यादा विश्व की जितने भी गणना है ज्योतिष की, उसमें सबसे प्रामाणिक और सबसे निर्दोष अगर कोई गणना है तो सौर की गणना है। वहाँ पर मलमास नहीं होता। चांद्रमास में मलमास होता है, क्योंकि वो गणना पूरी नहीं हो पाती तो हम मलमास करते हैं, लेकिन सौर गणना में वो नहीं होता है, वो वहाँ से चलता है। तो 14 अप्रैल से सौर पंचांग शुरू होता है, सौर वर्ष शुरू होता है। बहुत जगह पर कहीं बैसाखी मनाया जाता है, कहीं बिहू मनाया जाता है, कहीं पहला बैशाख मनाया जाता है, कहीं जूड़ी शीतल मनाया जाता है। तो ये पूरा देश जो है इस संक्रांति को, मेष संक्रांति और मकर संक्रांति को मनाते ही है। तो परसों हम लोग फिर आएंगे, जुटेंगे, और फिर 9 बजे से लेकर के हम आपको आंखों देखा हाल उस कुंभ स्नान का भी आपके समक्ष, आंखों देखा करें, सजीव प्रसारण आपके समक्ष करेंगे। मुझे डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र को अपने साथी कमेंटेटर डीपी त्रिपाठी, डॉक्टर शैलेश तिवारी, डॉक्टर शैलेंद्र उनियाल, आनंद श्रीवास्तव, शशि शर्मा, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, लोकेश ओहरी जी और डॉक्टर मंजुलिका गोगोई के साथ आज प्रसारण करने में और बातें रखने में बहुत आनंद आया। मैं अब इसके बाद त्रिपाठी जी को दे रहा हूं, वो अपनी बात करेंगे। जल ही जीवन है, बिना जल के प्राणी मात्र के लिए जीवन को रख पाना बड़ा असंभव है। इसीलिए जल का संरक्षण करना, जल के महत्व को समझना और जल के उपादेयता को समझना, ये हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों की बात करते हैं, तो इन 5 तत्वों में पृथ्वी तत्व, और जहाँ हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी के बाद सबसे आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमारे पास जल तत्व है। यदि जल नहीं होगा तो जीवन नहीं हो सकता है। इसलिए जल का संरक्षण करना और जल के महत्व को समझना, ये हमको बहुत आवश्यक है। जो माँ गंगा का जो जल है, यह जल नहीं है। सामान्यतया हम इसे जल कहते हैं, यह दिव्य जल है। यह दिव्य जल इस अर्थ में है, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि माँ गंगा का जो जल है, जब उसको आप लेके अपने घरों को जाते हैं, अपने पूजा स्थलों पे रखते हैं और किसी को उपहार में यदि जल देते हैं तो उसे गंगा जल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के घर में गंगा जली या गंगा जल को हम उसे देते हैं तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण अभी आप देखिए, सामने भगवान शिव की जटाओं से जल की धारा और माँ गंगा की जैसी निसृति हुई थी, जैसे माँ गंगा शिव की जटाओं में समा गई थी और शिव की जटाओं से जब गंगा निकली थी तो इसी प्रकार के फुहारा बन करके एक जटा भगवान शंकर ने जैसी खींची थी वैसे ही गंगा शिव की जटाओं से बाहर निकली थी। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो गंगा का जो दिव्य जल है, गंगा स्वर्ग से उतरी हुई पवित्र पावन नदी है और स्वर्ग पर रहने वाली, इससे दिव्य अभिप्राय स्वर्ग लोक से उतर करके भू पर आई है और भूमि पर आने के पीछे
आने का जो उद्देश्य था वह स्वर्ग से जब चली थी, ब्रह्म कमंडल से जब निःसृत हुई थी, तो ब्रह्म कमंडल से निःसृत होने से पहले ही यह निश्चित हो चुका था कि गंगा को पृथ्वी पर जाना है। किस हेतु जाना है, किस लिए जाना है, क्या करना है। और जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता एंकर ने कहा कि भाई गंगा के पाप से डर गई थी कि भाई मैं सबके पाप को धोते धोते कहीं ऐसा कि मैं पापी न हो जाऊं, इत्यादि बहुत सा वर्णन गंगा के संदर्भ में पुराणों में बहुत सा वर्णन मिलता है। और गंगा ही एक ऐसी नदी है, गंगा ही एक ऐसी संस्कृति है, गंगा ही एक ऐसी सभ्यता है, गंगा ही एक ऐसी परंपरा है जिसने भारतवर्ष के इतिहास को बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ दी हैं। भारतवर्ष का जो इतिहास है, जहाँ वेदों की संरचना गंगा के तट पर, वेदों की संकल्पना या वेदों का जो संकलन हुआ, पुराणों का लेखन हुआ, और जो पूरा महाभारत काल का जो वर्णन है, या पूरा एक जहाँ प्रारंभ होता है भरत वंश से, वो पूरा का पूरा, और उसके आगे यदि हम जाते हैं त्रेता युग में, तो भगवान राम का जो जन्म हुआ वो भी पूरी की पूरी गंगा घाटी है। जो गंगा घाटी यहाँ से हरिद्वार से लेकर के और गंगा सागर तक जाने वाली जो ये गंगा घाटी है, इस गंगा घाटी में किस प्रकार की सभ्यताएं और किस प्रकार की संस्कृतियाँ चली हैं, जी रही है। अभी हमारे समक्ष कितना दिव्य, कितना सुंदर गंगा माँ का दृश्य दिखाई दे रहा है। ये गंगा माँ का जो चिन्ह है, गंगा माँ की जो मूर्ति है जो दिखाई दे रही है, साक्षात मूर्ति ऐसी लग रही है कि माँ गंगा साक्षात अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अवतरित हुई है। ये हमारे समक्ष उदासीन अखाड़े का झांकी और उनका जो दर्शन का विशेष करके स्नान के लिए जाते हुए, और क्या उत्साह है जो अभी हमारा जो स्नान का जो पर्व है, ये स्नान का पर्व अब अपनी धीरे धीरे अपनी संपूर्ति की ओर जा रहा है। और अब हमारा उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़े का स्नान प्रारंभ चल रहा है। और इसके पश्चात जो स्नान है वह तीर्थ में कभी भी स्नान, हमेशा स्नान तीर्थ में खुला रहता है। वहाँ पर तीर्थ में जब हम पहुँचते हैं तो तीर्थ में कई ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, कई ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर कि हमेशा हर वक्त स्नान करने से उसका पुण्य लाभ होता है। तो मैं इतना कहूँगा कि आज हमको माँ गंगा के जो स्वरूप को, माँ गंगा की जो पवित्रता को, माँ गंगा के जिससे हमारा जीवन चल रहा है, गंगा घाटी में हरिद्वार से लेकर के गंगा सागर तक कितने प्राणियों का जीवन चलता है, कितने यहाँ पर सभ्यताएं पलती हैं, कितने लोग इसमें रहते हैं, और क्या धारणा है, क्या व्यवस्था है कि जब तक माँ गंगा का जल यदि हमारे घरों में न पहुँचे तब तक हमारे कोई भी पुण्य काम, कोई भी शुभ काम, कोई भी संस्कार हमारे नहीं हो सकते हैं। तो इन सभी वस्तुओं का, इन सभी प्रक्रियाओं का, इन सभी सभ्यताओं का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हमको अपनी माँ गंगा के पवित्रता को, माँ गंगा के स्वरूप को यदि हम बनाए रखेंगे, यदि हम उस पर विचार करते रहेंगे तो हम अपने स्वरूप को बनाए रखेंगे। यदि हम माँ गंगा के स्वरूप को नहीं बनाएंगे और उसमें उस स्वरूप को बनाने में यदि हमने थोड़ा भी स्खलन किया, थोड़ा भी, तो हमारे इस प्रकार के जो उत्सव हैं, हमारे इस प्रकार की जो उमंग है, ये हम कहाँ कर पाएंगे। इसीलिए यदि हमको हमेशा उत्साही रहना है, यदि हमेशा हमको अपने पर्वों को मनाए हुए चलना है, यदि हमको हमेशा अपनी जीवंतता को बनाए रखना है, तो माँ गंगा के स्वरूप को स्थिर रखना, माँ गंगा की पवित्रता को स्थिर रखना, उसको बनाए रखने के लिए अपना पूरा दत्त मन चित्त हो करके हमको अपना समर्पण देना होगा। और ये एकमात्र किसी एक संस्था का काम नहीं है, ये एकमात्र किसी शासन प्रशासन का काम नहीं है। यदि हम ये माने कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव मात्र का यह एक कर्तव्य है कि वह जल का संरक्षण करे, और उसमें भी ऐसे जल का जो जल हमारे लिए अमृत जल है, अमृत है, अमृत का संरक्षण यदि हम नहीं करते हैं तो इससे हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि आप जानते हैं पूरे विश्व की कोई भी ऐसी गंगा नहीं, यहाँ तक कि स्वर्ग से अवतरित जो गंगा है, देवता लोग भी जब गंगा पृथ्वी पर उतर आई तो देवताओं को भी आश्चर्य हुआ कि सारी गंगा पृथ्वी पर चली गई तो हमारे कैसे होगा। तो वो वहाँ से उतर करके वो लोग भी गंगा स्नान के लिए इस धराधाम पर आते हैं, इस भारत भूमि पर आते हैं। तो मैं इतना कह करके आज के अपने इस संपूर्ण की तरफ जाने वाले कार्यक्रम को
अब मैं सभी अपने जितने हमारे साथ एंकर बंधु थे और जो हमारे दर्शक लोग हैं उन सब का मेरा एक ही विनम्र निवेदन रहेगा कि हमेशा हमको जल का संरक्षण करना चाहिए और जल में भी माँ गंगा का बचाव यदि हम करते हैं, माँ गंगा की पवित्रता को यदि हम बनाए रखते हैं, तो हम अपनी पवित्रता, अपना संरक्षण, अपना वास्तविकता को बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अगले सहयोगी डॉक्टर शैलेंद्र उनियाल को समर्पित करता हूँ। सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वत स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्। आप यह देख रहे हैं विराट पुरुष की जो अवधारणा भारतीय संस्कृति में है, सहस्र शीर्षा आपको साक्षात दृष्टिगोचर हो रहे हैं, हजारों सिर दिखाई दे रहे हैं, यही विराट पुरुष की कल्पना है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। और यह जो नदी है वो भगवान की नाड़ियाँ हैं, नद्यः एव नाड्यः। और ये नाड़ियाँ क्या हैं? पंच नद्यः, 5 नदियाँ जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, वही ये पंच ज्ञानेंद्रिय व सरस्वती के द्वारा जो ज्ञान धारा से, कोई तो यहाँ ज्ञान धारा यहाँ साक्षात गंगा जल में स्नान कर रहे हैं, उन्होंने अपने को शुद्ध किया, अपनी आत्मा को शुद्ध किया, लेकिन जो केवल सुन रहे हैं वह ज्ञान धारा से आप्लावित हो रहे हैं और स्नापित हो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अपनी आँखों से जो दर्शन हो रहा है, आप जो यह दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं, अनेक प्रकार के संतों का दर्शन हो रहा है, माता गंगा का दर्शन हो रहा है, तो इससे आपकी ज्ञान इंद्रियाँ माँ सरस्वती की कृपा से चक्षुर इंद्रिय के द्वारा तथा कर्ण इंद्रिय के द्वारा, यह भी एक नदी है भगवान की। और इस कुंभ की जो कथा आप सुन रहे हैं, इससे जो कर्ण नाड़ी के द्वारा हृदय में जो ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, वह देह और गेह की रति को विस्मृत कर देता है। अर्थात जिसको भगवत प्राप्ति, भगवत तत्व की प्राप्ति करनी है, उसको भगवान का भगवत प्राप्ति हो जाती है, और जिसको लौकिक कामनाएं हैं उसकी कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। तो यह पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, स्पर्श, त्वचा से स्पर्श के द्वारा और वाक इंद्रिय के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, हम सब इन पंच इंद्रियों के द्वारा अपनी आत्मा का नदी ही बना करके, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, पुण्य सलीला गंगा जो है दिव्य आत्मा ही नदी है और संयम ही पुण्य तीर्थ है। और सत्योदका शील समाधि युक्ता, सत्य का जो जल है, सत्योदका शील समाधि युक्ता, तत्र पुण्यतमा स्नाति, जो पुण्य कर्मा जो है वह अपनी आत्मा रूपी नदी में ही स्नान करके और उस पवित्र परम पिता परमात्मा को, ईश्वर तत्व को साक्षात्कार, अमृत तत्व को साक्षात्कृत करता है। यही दिव्य अवधारणा विराट पुरुष की है। तो यह दर्शन से आपको यह लाभ हो रहा है। और इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अग्रिम वक्ता को। बड़ा अखाड़ा उदासीन इस समय हर की पौड़ी पर पहुंच चुका है स्नान के लिए। और आप देख रहे हैं ये जो ध्वजा है, ये ध्वजा अखाड़े के देवता होते हैं। सबसे पहले हर कुंभ में स्नान पर्व पर देवता सबसे पहले स्नान करते हैं। देवता को स्नान करके ध्वजा सजाकर और पूजन किया जाता है। उसके बाद तमाम अखाड़े जो उदासीन परंपरा के हैं वो स्नान करते हैं। और उससे पहले उनके इष्ट श्रीचंद भगवान, आपको श्रीचंद भगवान की प्रतिमा दिखाई दे रही है। ये प्रतिमा स्वर्ण प्रतिमा है जो बड़ा अखाड़ा उदासीन में स्थापित है। बड़ा अखाड़ा उदासीन, उदासीन शब्द जो है वो कहाँ से आया? उदासीन अखाड़े, दरअसल उदासीन जो शब्द है वो उसका अर्थ है कि जिनको किसी तरह का किसी भी चीज़ से मोह नहीं होता है,
संलिप्त नहीं होते हैं किसी सांसारिक परिक्रिया में, वो होते हैं उदासीन। और उदासीन परंपरा की एक अपनी कथा है। कहा जाता है कि जो उदासीन परंपरा है वो भगवान ब्रह्मा जी के, उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र 4 पुत्रों को जन्म दिया अपने मानस से, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उन 4 पुत्रों को